Now, what is important from dispensing pharmacy? So, first thing, parts of prescription is important. Posology, dose calculation is important. After that, incompatibilities are important. Dosage forms and their definitions, that part is important. Then after that, metric system, that is important. Dispensing pharmacy is a very minor subject. It is a very minor subject, and you can expect only two MCQs from this dispensing in the GPA diagram. Other exam they might the question might be more than this. So first we'll see different parts of. So what do you mean by prescription itself? You might have seen the prescription. आपने prescription देखा होगा. Prescription is nothing but the instruction to a pharmacist to dispense a specific medication. Okay, it is an instruction given by a physician to a pharmacist. जो डॉक्टर होता है वो एक प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ लिख के देता है और उसका भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सो इट इज अ इंस्ट्रक्शन टू ए फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस ए पर्टिकुलर मेडिसिन. इट इज अ रिटन instruction given to a pharmacist by a physician, that is known as a prescription, and it consists of details of patient, details of different kind of medication, details of dosage form, details of usage of medicine. तो यूज भी कैसे करना है उसका भी डिटेल में इसमें रहता है. सो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अगर इसके ऊपर ये बात करनी चाहो तो इसके ऊपर ये डिटेल में अगर बोलेंगे तो इट विल टेक अराउंड 1 hour. बट वी डोंट नीड डिटेल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. वी नीड्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. क्वेश्चन कहाँ से आता है? ये क्वेश्चन इसी पार्ट में से आता है. जो बोल्ड कंटेंट लिखा है मैंने इसमें से ही क्वेश्चन आ चुका है. टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन का स्टफ. आपने अगर प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा, सो इफ यू हैव सीन द प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज इट? ओके, तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सबसे पहले क्या होगा कि उसको हॉस्पिटल का नाम होगा या फिर डिस्पेंसरी का नाम होगा. सो इट विल हैव फर्स्ट नेम ऑफ डिस्पेंसरी और नेम ऑफ हॉस्पिटल along with the name of physicians and their education and all that. Okay, registered number, registered medical council number. So after that there will be some formats like prescription number, date, then name of patient, age of patient, then sex of patient, weight of patient, because these factors also decides the dose. These factors are also the factors which are important while prescribe while prescribing the dose. Okay, patient information, patient information. So patient information like name of patient, then age of patient, then sex of patient, then weight of patient, allergies or any kind of genetic allergies, etc. So nowadays that is also mentioned in the prescription. फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि पूरा डॉक्टर का इंफॉर्मेशन रहेगा, डिस्पेंसरी का इंफॉर्मेशन रहेगा, पेशेंट का इंफॉर्मेशन पूरा रहेगा. एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट, name, age, sex and allergy condition name. So name, age. Now age also matters because normally what happens, a dose is decided of a particular medicine. जो भी कोई ड्रग आता है मार्केट में उसका डोज जो डिसाइड होता है कि जैसे मान लीजिए 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, सो वो डिसाइड किसके अकॉर्डिंगली होता है. सो डोज, ए नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग इज डिसाइडेड by considering the young people, by considering the young age people, or by considering the a patient having 70 kg. ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एक ही कोई पेशेंट का 70 किलोग्राम वेट है, उसके अकॉर्डिंगली डोज. सो डोज इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द 70 kg patient. Patient weight is less than 70 kg, so obviously you have to modify the dose, you have to decrease the dose. Okay, if patient weight is more than 70, so you have to alter again a dose, so that also affect the dose of drug. Age, for example, in the hospitals, you are not going to, the doctor is not going to have only a same kind of patients. For example, doctor is not going to advise or doctor is not going to have only young patients. तो वहाँ पे सिर्फ यंग पेशेंट नहीं रहेंगे, वहाँ पे क्या रहेंगे, वहाँ पे बच्चे भी रहेंगे, यंग भी रहेंगे और बूढ़े भी रहेंगे. सो देयर विल हैव geriatric patient, pediatric patient as well as young people. Okay, so now in case of pediatric patient, pediatric मतलब बच्चे, बच्चों में क्या होता है कि उनका जो लीवर होता है, वो उनका जो किडनी होता है वो उतना डेवलप नहीं हुआ होता. सो इन केस ऑफ जेरियाट्रिक पेशेंट, द लीवर will has not completely developed, the kidney has not been completely developed, and you know that liver is nothing but the metabolic factory of your body,
and it is involved in the metabolism और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर ड्रग्स. जो भी आप मेडिसिन लेते हो वो सब कहाँ से मेटाबॉलिज्म होता है? लीवर में. चिल्ड्रंस दे हैव नॉट ए फुल्ली डेवलप्ड लीवर. उनका लीवर पूरा डेवलप नहीं हुआ होता और उसमें जो एंजाइम्स लगते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स CYP 450 enzymes, so they are also not a functional, not a fully functional. They are also there, they are present, but they are not a functional. So in case of geriatric patient, so these systems which are required for the kinetics of your drug, they are not fully developed. So you have to decide the dose according to that. Okay, so pharmacist is not involved in the decision. Pharmacist does not decide the dose, the doctor decide the dose. Okay, so physician decide the dose, but you should know why these factors are important. कि एक सिंपल लिखा है एज, क्यों इम्पोर्टेंट है. Okay, so if in case of geriatric patient, liver is not fully developed, it is not fully functional, the kidney is not fully developed, it is not also any full function, so the metabolism and elimination of drug will be affected, so it will be very slow in case of children. That's why you have to decrease the dose. Now in case of geriatric patient, in case of old people, so what happens? ड्यू टू एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे उनका एज होता है तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है. सो लीवर की कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज द ड्रग, so in case of geriatric patient, the capacity to metabolize the drug, the capacity of liver to metabolize the drug is also decreases with the age. The function of kidney also decreases with the age. So again in that condition you have to modify the dose. Age is important, so age affect the dose of. Then sex, so male, female and transgender. So in case of male, you know that male male system or male body is a little bit tough, little bit harder. Okay, so but in case of female, so female का body जो होता है वो उतना as compared to male उतना ये नहीं होता. Okay, so in case of female you need a dose reduction. Okay, in case of female you need a dose reduction. Again you have to consider various biological factors, जैसे उनका pregnancy होता है, ठीक है, ये सब you have to consider. So that's why age matters, sex matters, then weight. So as I have told you, so अगर किसी का weight कम है तो उसका डोज कम करना पड़ेगा. वेट ज्यादा है तो उसका डोज ज्यादा करना पड़ेगा. बिकॉज नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू और बाय कंसिडरिंग ए पेशेंट ऑफ 70 किलो. अगर कोई नॉर्मल पेशेंट का डोज जो होता है, नॉर्मल डोज मतलब किसको, कि हर एक के लिए वो नॉर्मल नहीं रहता. 70 kg, अराउंड 70 kg का कोई पेशेंट है तो उसके लिए वो नॉर्मल डोज है, और उससे कम है तो उसके लिए वो डोज कम करना पड़ेगा. उससे ज्यादा है वेट तो ज्यादा करना पड़ेगा. पेशेंट इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट ऑन द, that is present in the prescription. After that, now this part is important. They have already asked the question on this. Parts of prescription. First, patient information, age, sex, weight, and name and full address. Also, address of patient, blood group. Some kind of new hospitals they are so uh, mentioning over there. Blood group, allergic reactions, allergic any allergy is there to any particular drug. तो वो भी मेंशन करते हैं. नाउ आफ्टर दैट सुपरस्क्रिप्शन दिस पार्ट सुपरस्क्रिप्शन. सो सुपरस्क्रिप्शन इसमें रहेगा आपका सिंबल होता है. सो इन द सुपरस्क्रिप्शन देयर इज अ सिंबल ऑफ RX, symbol of RX. So what is RX? So you might have seen the prescription on the left corner of the prescription. They have a hologram or they have a printing of RX symbol. So RX symbol is nothing but it is a symbol of Latin. It is a symbol for a god of healing. It is a symbol for a god of healing known as Jupiter. It is a symbol for a god of healing known as Jupiter. Okay, so symbol for a god of healing, that is Jupiter. And RX means nothing but the meaning of this RX in the Latin. In the Latin, it is a RX means take tau or you take, or it is nothing but the simply a recipe. So RX is nothing but a recipe. Recipe means कि उसको कौन सा मेडिकेशन देना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट रहेंगे. सो RX is the symbol you take. It is a it is a it is a instruction to patient. नीचे दिए हुए मेडिकेशन आप ले लो. So RX is nothing but the symbol. It is a symbol for god of healing, that is Jupiter, and it is nothing but the recipe or it's me
इट्स मीनिंग इज नथिंग बट द यू टेक. ओके, यू टेक. क्वेश्चन ऐसा आया था इसमें. सो आर एक्स सिंबल इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. क्वेश्चन ऐसा आता है उसके, आर एक्स सिंबल इज प्रेजेंट इन द following part of prescription. So remember Rx symbol is present in the superscription. Rx symbol का आप रहता है superscription. Now after that inscription is there. Inscription. So inscription means a detailed summary or detailed medication. Detailed names of medication. Okay, कितने ड्रग दिए हैं, उसके बाद में उसका एडिटिव्स कितना है, उसके बाद में फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा डालना है, कितनी क्वांटिटी में सब डालना है. सो एक्चुअली इंस्क्रिप्शन इज नथिंग बट द डिटेल्ड मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड. इट इज द एक्चुअल नेम्स ऑफ मेडिकेशन, इट इज प्रेजेंट इन द इंस्क्रिप्शन. ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है. इंस्क्रिप्शन मीन्स डिटेल मेडिसिन, actual names of medicine along with their additives and all that, along with their diluent additives, flavoring agent, etc. Then subscription. After that there is a subscription. Subscription में क्या रहेगा? Subscription part consists of instruction to a pharmacist. Instruction to a pharmacist. For example, dispense 10 tablet of codeine phosphate IP 10 milligram. So उसमें जो फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा वो रहेगा कि उसमें कोडिन फॉस्फेट लेना है, टाल कितना लेना है और टैबलेट बनाना है, पिल्स बनाना है. यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं आपको. ओके, सुपरस्क्रिप्शन में रहेगा आर एक्स सिंबल, इंस्क्रिप्शन में रहेगा डिटेल्स ऑफ मेडिसिन एंड सब्सक्रिप्शन में रहेगा इंस्ट्रक्शन टू ए फार्मासिस्ट. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. इंस्ट्रक्शन टू ए फार्मासिस्ट इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन में आर एक्स सिंबल, इंस्क्रिप्शन में डिटेल ऑफ मेडिसिन, subscription में instruction to a pharmacist. Now next part is a transcription. So in the transcription part it is a instruction to a patient. Instruction to a patient को क्या instruction रहेंगे कि खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है, दूध के साथ में लेना है, पानी के साथ में लेना है या फिर किसी के साथ में नहीं लेना है. This transcription. After that signatura. Signatura or signatura जो भी बोल. Signatura means prescription should be signed by physician. Then after that renewal instruction will be there कि ये प्रिस्क्रिप्शन बाद में इतने दिन के बाद फिर से रिन्यू करना है, नहीं तो फिर एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिया तो फिर लाइफ टाइम लेते बैठेंगे, वो वैसा नहीं चलेगा. Then after that register, sign, number of prescriber, etc. So actually these are the part of prescription. Nowadays पहले जमाने में क्या होता था कि देयर वाज अ डिस्पेंसिंग फार्मेसीज और डिस्पेंसरीज. पहले जमाने में क्या था, डिस्पेंसरी था, मतलब उस टाइम पे रेडीमेड फॉर्मुलेशन अवेलेबल नहीं थे. तो डॉक्टर यूज टू प्रेस्क्राइब द फॉर्मुलेशन एंड देन फार्मासिस्ट यूज टू मेक दैट. ओके, फार्मासिस्ट यूज टू make that formulation in their dispensary and then freshly they have to dispense to patient. But nowadays what happens, nowadays in the all the industrial development is there and ready-made formulations are available. So you just go and doctor will prescribe directly a trade name. For example, Calpol 500, paracetamol 500 milligram, cetirizine 5 milligram, then after that cetirizine 5 milligram, then ZP 200 6 tablet, cetirizine 5 tablet, ऐसा डायरेक्टली डॉक्टर. अभी आजकल क्या है कि डॉक्टर डायरेक्टली नाम लिख देता है पेशेंट टेबलेट की, दैट इज अ ट्रेड नेम. ये रेडीमेड फॉर्मुलेशन है. बट इन द प्रीवियस टाइम, इन द एंशिएंट टाइम, देयर वाज नो formulation available. So pharmacist has to make the formulation in the dispensary. So for that purpose this prescription was there. Nowadays also prescription is used, but वो आजकल रेडीमेड फॉर्मुलेशन है. तो याद रखो सुपरस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, आर एक्स सिंबल रहेगा सुपरस्क्रिप्शन में. इंस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, डिटेल्स नेम ऑफ मेडिसिन टू बी प्रेस्क्राइब्ड. सब्सक्रिप्शन में रहेगा इंस्ट्रक्शन टू ए फार्मासिस्ट. ट्रांसक्रिप्शन में रहेगा इंस्ट्रक्शन टू ए पेशेंट. सिग्नेचर में रहेगा, सिग्नेचर रहेगा पेशेंट का. बाद में रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड बाद में रजिस्टर्ड नेम ऑफ दैट रजिस्टर्ड नेम ऑफ दैट. तो ये एक्चुअली पार्ट थे. इसके ऊपर 2 या 3 के ऊपर ही क्वेश्चन आता है. सुपरस्क्रिप्शन का उसका मतलब क्या है, या फिर इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, उसमें क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, सिंबल किस में रहता है, ये सब इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है. सो याद रखो. आफ्टर दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दैट्स इट. बाकी इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं करना है. नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट द इनकॉम्पेटेबिलिटीज. Incompatibilities. What do you mean by incompatibility? If two ingredient of formulation, if they are
not compatible with each other. If two or more ingredient of a prescription or formulation, they are not compatible with each other, means presence of them will alter the either physical or chemical or therapeutic वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन. कोई फॉर्मुलेशन है उसमें अगर दो इंग्रेडिएंट ऐसे है कि उसकी वजह से वो उसकी वजह से अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होके प्रेसिपिटेशन हो रहा है या फिर कोई थेरापेटिक वैल्यू उसका अल्टर हो रहा है, सो दे आर नोन एज इनकॉम्पेटेबल टू ईच अदर. नाउ types of incompatibility. What is meant by incompatibility? So if two or more formulations they are present in the two or more ingredient they are present in the formulation, and if they are incompatible, which result in the either changing the physical properties of formulation or chemical properties of formulation or therapeutic value of formulation, that is known as incompatibilities. Okay, now basically there are three types of incompatibilities that are found in the dispensing or that are found in the pharmacy. First one is nothing but the physical incompatibility. Second one is the chemical incompatibility, and third one is nothing but the therapeutic incompatibility. So in case of physical incompatibility, physical में क्या होता है कि so if two ingredient in the particular prescription or particular formulation, so if they are incompatible, so incompatible physically, that means what will happen? So presence of the two components that may result in the insolubility. Okay, that may result in the liquefaction, that may result in the precipitation, or that may result in the immiscibility. मतलब कोई अगर ड्रग है तो एक ड्रग सॉलिड वाटर में डाल दिया तो वो सोल्यूबल है, उसका ये बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो वो डाल दिया तो वो सोल्यूबल, लेकिन दूसरा ड्रग डाल दिया तो वो एक ड्रग प्रेसिपिटेट हो रहा है, सो इनसोल्युबिलिटी. लिक्विफिकेशन मतलब क्या कि अगर दो पाउडर आपने ट्राइचुरेट किए और उसका लिक्विड बन गया, सो फॉर एग्जांपल फिनॉल एंड मेंथॉल, अगर मेंथॉल, फिनॉल, सेलॉल और salicylic acid, if they are mixed together, so they result in the liquefaction because of the lowering of melting point. So that is a kind of physical incompatibility. That is again precipitation. Again, precipitation immiscibility. So if two component present in the formulation or two component present in the prescription, if they are incompatible physically, that may result in the insolubility, liquefaction, precipitation, or immiscibility. So these are the kind of physical incompatibility. Now chemical, we'll see this in detail in upcoming slide. Now chemical incompatibilities. Chemical मतलब क्या, यहाँ पे chemical reaction होगा. So यहाँ पे क्या होगा, two incompatible dilute or additives, if they are incompatible with each other, they will act chemically and they will form a undesired product. Okay, undesired product. सो दे इन दैट केमिकल में दो टाइप का होता है, एडजस्टेड होता है, टॉलरेटेड होता है. एडजस्टेड इनकॉम्पेटेबिलिटी एंड टॉलरेटेड इनकॉम्पेटेबिलिटी. एडजस्टेड में मतलब क्या, एडजस्टेड में ये होता है कि अगर पीएच चेंज हो रहा है, अगर अगर कोई ड्रग ऐड करने के बाद में अगर पीएच चेंज हो रहा है, और पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पीएच उसका वो लेवल तक लेके आना है बाय यूजिंग बफर्स, दैट इज नोन एज एडजस्टेड इनकॉम्पेटेबिलिटी. टॉलरेटेड मतलब क्या कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बनाया आपने, कोई सॉल्यूशन दिया है डॉक्टर ने, वो सॉल्यूशन बनाया और दूसरा ड्रग ने क्या किया, वो जब उसको ऐड किया, सो कलर चेंज हो गया उसका, सो कलर चेंज हो गया, लेकिन थेरेपेटिक में बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कलर चेंज. सो दैट इज टॉलरेबल. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कलर वो चेंज हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ टॉलरेटेड इनकॉम्पेटेबिलिटी. So chemical incompatibility, in that you have adjusted one and tolerated one. For example, because of the presence of two incompatible diluent, there will be color change, or there will be effervescence, there will be precipitation, there will be decomposition. So these are the examples of chemical incompatibilities. Okay, chemical incompatibility. Now therapeutic incompatibility, presence of one or more ingredient, if they affect the therapeutic value of formulation or prescription, that is known as therapeutic incompatibility. For example, CNS depressant ड्रग जो है और उसी प्रेस्क्रिप्शन में कोई CNS स्टिमुलेंट ड्रग दिया है, so they are nothing but the pharmacologically incompatible. तो CNS डिप्रेसेंट ड्रग, CNS स्टिमुलेंट ड्रग अगर दोनों साथ में दे दी, दोनों का एक्शन क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा. सो बोथ CNS stimulants action and CNS depressant action will be nullified because in the prescription both drug are present. CNS stimulant भी है, depressant भी है. So that is a kind of therapeutic incompatibility. Again, for example,
if same prescription consists of a laxative and astringent, अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में लैक्सेटिव अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में लैक्सेटिव भी दिया है और एस्ट्रिंजेंट ड्रग भी दिया है। लैक्सेटिव मतलब क्या है कि एनी ड्रग दैट कैन प्रमोट द प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बावेल, कि आपका जो बावेल है, आप में आपके पेट में जो आफ्टर डाइजेशन जो बचा है वो रिमूव भी करना है ना मस्त सुबह सुबह, जिसके लिए आप टॉयलेट जाते हो। सो अगर नहीं रिमूव हुआ मतलब वो कॉन्स्टिपेशन होगा। सो इफ यू आर नॉट एबल टू पास योर स्टूल्स, दैट इज नोन एज अ कॉन्स्टिपेशन। Okay, so in the constipation you are giving laxatives are nothing but the drug which are used to promote the bowel, and astringent मतलब क्या, they are a protein precipitate, so most of the astringent they are a constipating agents। ठीक है, तो ये क्या करेगा, bowel को रिमूव करेगा, ये क्या करेगा, bowel को रिटेन करेगा। so that's why, so these two drug, okay, laxative as well as astringent, if they these two drug are present in the, or these two kind of chemicals are present in the same prescription, that means they are incompatible to each other therapeutically। so that is the example of therapeutic incompatibility। now next example is nothing but the atropine and morphine। ठीक है, atropine and morphine। so if prescription consists of these two, atropine and morphine, अगर मॉर्फिन भी है उस प्रिस्क्रिप्शन में, एट्रोपिन भी है, तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा। मॉर्फिन क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, एट्रोपिन क्या करता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन करेगा एंटी को एंटी करने के। अगेन एट्रोपिन इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट, ये क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट, अगेन वो भी इनकॉम्पिटेंट। सो दीज टू ड्रग आर थेरेपेटिकली इनकॉम्पिटेंट। फॉर एग्जांपल, if same prescription consists of adrenaline and acetylcholine, so you know that adrenaline and acetylcholine they are a pharmacological antagonist, that is incompatible, therapeutic incompatible prescription. If any prescription has a this caffeine and chloral hydrate, so they are just example, caffeine and chloral hydrate। so chloral hydrate is nothing but the CNS depressant drug, the CNS depressant drug, and caffeine is a CNS stimulant, so both are opposite action। so these are the example of therapeutic incompatibility। so incompatibility, now we'll see one by one। so incompatibility is nothing but the a physical, chemical or therapeutic reaction of a drugs with other medicaments or ingredient or other drug itself in the formulation। this reaction result, or this reaction renders the formulation inappropriate to use। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो क्या होगा कि अगर कोई फॉर्मुलेशन में या फिर कोई प्रेस्क्रिप्शन में ऐसे दो इंग्रेडिएंट है जो फिजिकली या फिर केमिकली या फिर थेरेपेटिकली जो compatible नहीं है। okay, so incompatibility is nothing but the physical, chemical and therapeutic reaction to a drug with another drug, or drug with a medicament, other medicaments, that is another drug or drug with the excipient, which result in the undesired product। okay, which result in the undesired product, or which result in the which renders the product useless, that is nothing but the incompatibility। ये incompatibility का definition हो गया। now we'll see the physical incompatibility first, examples, and then we'll see chemical incompatibility। now physical incompatibility, so physical incompatibility can be caused by either immiscibility or insolubility or liquefaction। ओके, तो अगर दो इंग्रेडिएंट एक में ऐड किए एक फॉर्मुलेशन में, अगर उसमें से इमिसिबल है, इंसोलिबिलिटी हो रहा है या फिर लिक्विफिकेशन हो रहा है, सो दैट इज अ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। विल सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, sulfur powder, corticosteroids, antibiotics, they are not soluble in the solvent। to make them solubilize you need a wetting agent। जैसे सल्फर पाउडर हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये जल्दी वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो उनको सोल्यूबलाइज करने के लिए क्या लगेगा, आपको वेटिंग एजेंट लगेगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी। देन एक्सेस ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट में रिजल्ट इन द क्लेइंग। सो कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेटिंग एजेंट। सो अगर ज्यादा फ्लोकुलेशन अगर सस्पेंशन में हो गए तो उससे क्या होगा, क्लेइंग हो जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा सबको। you need to control the concentration of wetting agent। okay, then due to change in the solvent, like in case of tinctures precipitation occurs। जैसे होता है टिंचर जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें अमोनिया वगैरह, अमोनिया की या फिर सिट्रस साइट्रिक एसिड वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई ड्रग जो है वो अगर सिट्रिक एसिड से प्रेसिपिटेट हो गया तो क्या होगा, so that drug will be precipitated। so that is a physical type of incomplete।
अगर अमोनिया अमोनिया स्पिरिट ऑफ एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, अगर ये एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है, अगर उसमें कोई एसिडिक ड्रग है तो दैट विल फॉर्म ए salt and that will get precipitated. That is a kind of physical incompatibility. High concentration of electrolyte causes caking or sublimation, caking or sublimation by salting out emulsifying agent. ठीक है, अगर आपके पास इमल्शन है उसमें अगर सॉल्ट डाल दिया आपने, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट विल कॉज क्रैकिंग ऑफ इमल्शन, cracking of emulsion by salting out. So high concentration of electrolytes, if they are added in the emulsion, that result in the cracking, okay, by salting out the emulsifying agent. Then, for example, benzalkonium chloride and sodium lauryl sulfate, they are having oppositely charge. If they mix together, there will be precipitation. बेंजाल्कोनियम क्लोराइड का है कैटोनिक सर्फेक्टेंट है, सोडियम लाउरिल सल्फेट क्या है, एनोनिक है, ये कैटोनिक है. So if they are mixed together, there will be precipitation. That is a kind of incompatibility. Then liquefaction का example देखो. Due to lowering of melting point upon addition of another substance called as a eutectic mixture. This is example. Camphor, menthol, phenol, thymol, chloral hydrate, then salicylic acid, benzoic acid, salicylic acid, phenol, thymol, camphor, menthol. ये अगर एक में के साथ में मिक्स करेंगे इनको, so what will happen? There will be lowering of melting point and the, आपने दो पाउडर ले मान लीजिए कैम्फर का पाउडर ले लिया और थाइमोल का पाउडर ले लिया और आपने मॉर्टर एंड पेस्टल में उसको ट्राइचुरेट कर रहे हैं. सो लिया तो आपने पाउडर है, जब आप ट्राइचुरेट करोगे तो उसमें सब उसका लिक्विड बन जाएगा. सो ड्यू टू lowering of melting point because of the addition of another substance, such kind of mixtures they are known as eutectic mixture. So इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यूटेटिक मिक्सचर. यूटेटिक मिक्सचर मतलब क्या है, जैसे कैम्पर, मेंथॉल, फिनॉल, थाइमोल, क्लोरल हाइड्रेट, उसके बाद में आपका सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, अगर इनको एक में एक के साथ में आपने ट्राइचुरेट किया तो वो सॉलिड का क्या बनता है, लिक्विड बनता है. टू लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट दे बिकम अ लिक्विड व्हेन यू मिक्स देम टुगेदर. So such kind of mixture they are known as a eutectic mixture. They are known as eutectic mixture. So camphor, menthol, phenol, thymol, chloral hydrate, then aspirin, then benzoic acid, etc., etc. They are they result in the liquefaction. Sodium salicylate. Okay? This is sodium salicylate drug. So it is, if it is mixed with these phenols or thymol or camphor, so there might be again uh, result in the liquefaction. सो रेमेडी फॉर लिक्विफिकेशन, अगर ये हो रहा है तो क्या कर सकते हो आप. सो रेमेडी फॉर लिक्विफिकेशन, हाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी. रेमेडी क्या है, ट्राइचुरेट ए वन ड्रग विद एडसॉर्बेंट लाइक केवोलिन और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो पहले क्या करो कि जैसे मान लीजिए मेंथॉल है, मेंथॉल ले लो, उसमें थोड़ा सा लाइट केवोलिन डालो या फिर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट डालो, पहले उसको ट्राइचुरेट करो और बाद में फिर दूसरा थाइमोल या फिर जो भी एस्पिरिन हो वो डालो और करो उसको ट्राइचुरेट. सो दैट विल नॉट रिजल्ट इन द लिक्विफिकेशन. सो दैट इज द रेमेडी फॉर लिक्विफिकेशन. सो यू कैन ट्राइचुरेट दैट विद आइदर केवोलिन और मैग्नीशियम कार्बोनेट और even you can triturate with the talc compound. Now chemical incompatibilities. Chemical incompatibility मतलब ये chemical reaction होगा है. That may result in the precipitation or that may result in the change in the potency due to chemical reaction. Mostly what happens in the this type of incompatibility, जैसे pH change हो, pH change. So pH change is the chemical incompatibility. Question आता है, the following is not considered as a chemical incompatibility. One of the following is a example of chemical compatibility. So pH change is a chemical incompatibility. Decomposition is a chemical incompatibility. Complex formation is a chemical incompatibility. So they may be either tolerated or adjusted. Now adjusted में क्या है? For example दो. Barbiturates are almost insoluble in the water and their sodium salts are very soluble. So solutions of salt of barbiturates, they are very alkaline and are incompatible with the acids. ठीक है, तो बार्बिचरेट्स क्या है कि बार्बिचरेट्स दे आर इनसोल्युबल इन द वाटर, तो उनके सॉल्ट जो है तो सॉल्ट फॉर्म बनाया है सोडियम थायोपेंटोन सोडियम. थायोपेंटोन सोडियम तो सोल्युबल है वाटर में, बट वो क्या रहेगा, दैट विल गिव वेरी बेसिक सॉल्यूशन और वेरी अल्कलाइन सॉल्यूशन. नाउ इफ यू स्टेबलाइज और इफ यू ऐड, जैसे होता है ना कि आपने अगर कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करे, जैसे मान लीजिए कि फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया आपने
lemon syrup or ammonium bromide. Okay, so these are nothing but the acidic one. Lemon syrup means citric acid रहेगा उसमें. This acid with the alkaline drug. So what will happen? It may lead to precipitate the corresponding barbituric acid. Now it is minimized by adjusting the pH of solution. So precipitation of such kind of incompatibility, precipitation is there. So precipitation can be minimized, can be avoided by adjusting the pH of solution. So यहाँ पे adjust किया आपने, हो रहा है incompatibility लेकिन adjust किया, so adjusted incompatibility. Tolerated, यहाँ पे जो adjustment कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? There is a precipitation of this barbituric acid and this lemon syrup. There is a precipitation of barbiturates by lemon syrup. So what will happen? So you know that barbiturates are insoluble in the water. तो वो soluble नहीं है तो उनका absorption ही होगा नहीं. अगर lemon syrup उसमें use किया आपने flavoring agent और thiopentone का या फिर phenobarbital का solution बनाया आपने और उसमें लेमन सिरप ऐड किया एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, तो क्या होगा? लेमन सिरप क्या है? एसिडिक है. ओके, फेनोबार्बिटोन क्या है? बेसिक है, तो उसमें सॉल्ट बन जाएगा उसका. सो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ बार्बिट्रिक एसिड व्हिच इज इनसॉल्युबल. ये एब्सॉर्ब भी नहीं होगा. नाउ दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय और दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडजस्टिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडजस्टेड. ये एडजस्ट किया है. टॉलरेटेड, टॉलरेटेड मतलब कि आप टॉलरेट कर रहे हो, आपको मालूम है कि ये इनकॉम्पेटिबिलिटी है लेकिन आप फिर भी टॉलरेट कर रहे हो, चलो जानो कोई दिक्कत नहीं, थेरेपेटिक वैल्यू अल्टर नहीं हो रहा है. सो द इनकॉम्पेटिबिलिटी दैट कैन बी टॉलरेटेड इन द फॉर्मुलेशन व्हिच डजंट अफेक्ट द थेरेपेटिक वैल्यू. कोई फॉर्मुलेशन में नॉर्मली वो फॉर्मुलेशन आपका कलरलेस है लेकिन इनकॉम्पेटिबिलिटी आ गया, उसमें कलर हो गया लेकिन उसका थेरेपेटिक वैल्यू कोई अल्टर नहीं हो रहा है, ऐसे भी कुछ इनकॉम्पेटिबिलिटी, दैट इज नोन एज अ टॉलरेटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी. उसमें आपका फॉर्मुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. So incompatibilities that can be tolerated in the formulation which doesn't affect the therapeutic value of your formulation. For example, okay, इसमें chemical incompatibility में फर्स्ट है आपका precipitation reaction. Precipitation reaction occurs due to change in the solvent of important, okay, change in the solvent. For example, alkaloids, most of them are insoluble in water. Alkaloids, most of them are insoluble in water. Salts are soluble in water. Nascopine and papaverine, they are extremely insoluble. Nascopine जो होता है is a alkaloid, papaverine जो है it is a alkaloid. They are insoluble in water. So co-solvent citric acid is used for nascopine. Okay, and they are incompatible with the alkaline media. When alkaline media is there, they get precipitate. Now again, strychnine hydrochloride is incompatible with the aromatic spirit of ammonia. They will form a precipitate of strychnine. एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो है वो बेसिक है, ठीक है, और जो ड्रग जो है वो एसिडिक है. ड्यू टू दैट देयर विल बी प्रेसिपिटेशन. सैलिसिलिक एसिड इज इनकम्पेटिबल विद लेमन सिरप एंड अदर सिट्रस फ्लेवर्स. जो सिट्रस फ्लेवर्स होते हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड क्या है? इनकम्पेटिबल. बिकॉज सिट्रस फ्लेवर में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है एंड एसिड बिकॉज ऑफ द सेम एसिडिक नेचर सैलिसिलिक एसिड विल precipitate out. Carbon dioxide evolution takes place in the preparation containing borax, sodium carbonate and glycerol. अगर कोई प्रिपरेशन में क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, ग्लिसरॉल है एंड बोरैक्स है, तो उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? रिलीज हो जाएगा. सोडियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विद द बोरिक एसिड and it will release the carbon dioxide. Same is true with ammonium carbonate and carbonate or bicarbonate with syrup or acidic drug. एसिडिक ड्रग अगर आप सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट के साथ में करेंगे तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी. थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी दे आर ड्यू टू आइदर अल्टरेशन ऑफ, ओके, दे रिजल्ट इन द अल्टरेशन ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग व्हिच इज अनडिजायरेबल. ठीक है, डिजायरेबल नहीं होता है. आपको अगर आपको दिया है हेडेक के लिए, हेडेक रिलीव करने के लिए ड्रग दिया है, ओके, कोई आपका जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है जो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, सेरेब्रल वैसोकंस्ट्रिक्टर, आपको पहले हेडेक है और इफ एनी ड्रग इज देयर व्हिच कंस्ट्रिक्ट द सेरेब्रल ब्लड वेसल या फिर व्हिच इंक्रीजेस द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऐसा कोई ड्रग है प्रिस्क्रिप्शन में और आपको ऑलरेडी हेडेक है, उसके लिए आपने दूसरा एनालिसिक ड्रग दिया है. सो दैट इज नोन एज थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी. एक ड्रग आपको हेडेक करेगा जो वैसोकंस्ट्रिक्टर है वो
और जो दूसरा ड्रग है वो हेडेक रिलीव करेगा. सो दैट इज अ थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी. नाउ इट मे बी ड्यू टू फार्माकोकाइनेटिक अल्टरेशन. तो थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी डिफरेंट टाइप के होते हैं. फार्माकोकाइनेटिक अल्टरेशन, डायनामिक अल्टरेशन. सो जैसे मान लीजिए काइनेटिक में एग्जांपल, आपका फेमस एग्जांपल है, दैट इज नथिंग बट द टेट्रासाइक्लिन्स. तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन. ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, iron is ferrous. So these divalent cations, they forms a salt with the tetracyclines. तो tetracycline के साथ में क्या करते हैं, ये salt फॉर्म करते हैं which are insoluble in the nature, and that's why they decreases the absorption of tetracycline. Okay, decreases the absorption of tetracycline. So it is a kind of pharmacokinetic incompatibility. Then again फ्लोरोक्विनोन्स, दैट इज अ जो आपको क्विनोलोन एंटीबायोटिक है, जैसे आपका सिप्रोफ्लोक्सिन, नॉरफ्लोक्सिन, गेटिफ्लोक्सिन, मॉक्सिफ्लोक्सिन, ओफ्लोक्सिन, लोमिफ्लोक्सिन. So all these they are also incompatible with the tetracyclines, are incompatible with the salt. ठीक है, इसमें आपका ये भी आता है एंटासिड्स. एंटासिड में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये भी रहता है. कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम. So they can form a chelates with the tetracyclines and fluoroquinones, and which will reduce their absorption. So kind of therapeutic incompatibility. Now pharmacodynamic incompatibility. ठीक है, डायनामिक इनकम्पेटिबिलिटी. डायनामिक मतलब इसमें एक्शन के ऊपर अपोजिट एक्शन रहेगा. अमाइन कंटेनिंग ड्रग लाइक मिल्क, फूड, चीज, बटर, जूस, ग्रेप जूस, देन पनीर, दे आर इनकम्पेटिबल विद द माओ इनहिबिटर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टायराम. क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द व्हेन वी वर सीइंग अबाउट द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. तो उस टाइम पे मैंने बोला था आपको, जो मिल्क होता है, मिल्क में जैसे आपका बटर मिल्क हो गया, चीज हो गया, ग्रेप जूस हो गया, हो गया, तो इसमें क्या रहता है कि टायरामाइन नाम का एक अमाइन रहता है. टायरामाइन नाम का एक अमाइन रहता है. माओ इनहिबिटर्स आप कहाँ पे यूज करते हो? माओ मीन्स मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज. ओके, माओ इनहिबिटर्स दे आर यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट. माओ इनहिबिटर्स, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मतलब क्या? दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माओ इनहिबिटर्स. दे आर used in the treatment of antidepressant. they are the antidepressants. तो उसमें क्या होता है कि टायरामाइन अगर देगा तो टायरामाइन इज नथिंग बट द प्रिकर्सर फॉर मोनोअमाइंस. अगर आपने मिल्क ले लिया, चीज खाया, बटर खाया, तो उसमें ये टायरामाइन होता है. और टायरामाइन क्या करता है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. टायरामाइन क्या करेगा, आपका मोनोअमाइंस है वो बढ़ा देगा. दैट विल रिजल्ट इन द हाइपरटेंशन. There are a lot of therapeutic incompatibilities like drug interactions, drug absorption interaction, drug distribution interaction, drug elimination interaction. जैसे मान लीजिए कि पेनिसिलिन्स का जो है, पेनिसिलिन्स का एब्सॉर्प्शन डिले करने के लिए आप क्या करते हो, उसमें एड्रेनालिन यूज करते हो. जैसे लोकल एनेस्थेटिक में भी क्या है, टू डिले द इट्स एब्सॉर्प्शन यू यूज एड्रेनालिन. दैट इज अ काइंड ऑफ एब्सॉर्प्शन इंटरेक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन मतलब क्या, कि एक ड्रग ने अगर सेम बाइंडिंग करता है प्रोटीन को, जैसे वारफेरिन एंड फिनाइलब्यूटाजोल, so they used to bind with the albumin. Okay, so warfarin binds with the albumin after absorption, and that is a plasma protein binding. Now if you use phenyl if you use that phenylbutazone, now phenylbutazone also goes absorbed into body and gets bind to albumin at the same site where that warfarin was bind. Now by displacing the warfarin, it increases the sudden level of warfarin in the body, so that result in the bleeding. That is a kind of distribution interaction. So metabolism interaction is also there. Some are enzyme inhibitors, some are enzyme inducers, likewise that. Now posology. Now posology. What do you mean by posology? Okay, posology. इसमें पोसोलॉजी मतलब POSOLOGY. पोसो मतलब क्वांटिटी एंड लोगोस मतलब कैलकुलेशन. ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी और कैलकुलेशन ऑफ डोज, दैट इज नथिंग बट द पोसोलॉजी. POSOLOGY. posology. Calculation of dose, the science which deal with the calculation of dose is nothing but the posology. Okay, now child dose calculation formulas. चाइल्ड डोज कैलकुलेशन फॉर्मूला मैंने बोला है पहले कि चिल्ड्रन में क्या होता है कि उनका लीवर, उनका किडनी पूरा डेवलप नहीं होता है, उसकी वजह से उनको मेटाबॉलाइजिंग कैपेसिटी भी कम होता है, एलिमिनेशन कैपेसिटी भी कम होता है. तो यू हैव टू डिक्रीज द डोज. ना उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट है, उनको कुछ काम नहीं था, उन्होंने फॉर्मूले देके रखे हैं. ठीक है,
तो पहला फॉर्मूला है आपका यंग्स फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज, यंग्स फॉर्मूला. नाउ दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन एज ऑफ चाइल्ड इज बिटवीन 1 to 12 years. अगर 12 साल के नीचे बच्चा है, अगर बच्चे का उसका जो एज है वो अगर 12 साल तक है तो आप यंग्स फार्मूला यूज कर सकते हो. यंग्स फार्मूला, सो यंग्स फार्मूला इज फॉर द चाइल्ड ऑफ 1 to 12 years एज. अगर बच्चे का 1 साल से 12 साल तक एज है तो उसमें यूज करना है. सो व्हाट इज द फार्मूला? यंग्स फार्मूला इज नथिंग बट द एज इन द ईयर्स divided by age in the years plus 12. Age in the years divided by age in the year plus 12 into adult dose. तो अगर मान लीजिए बच्चे का, मान लीजिए अडल्ट डोज जो है आपका दैट इज 100 मिलीग्राम. कोई ड्रग है आपका, उसका अडल्ट डोज से 100 मिलीग्राम, वो आपको देंगे कि कैलकुलेट द डोज रिक्वायर्ड ऑफ सेलोकॉक्सिब फॉर ए 10-year-old चाइल्ड. ऐसा क्वेश्चन रहेगा. तो उस टाइम पे आपके ध्यान में आना चाहिए कि 12 साल के नीचे मतलब यंग्स फार्मूला का है एज ऑफ चाइल्ड इन द ईयर डिवाइड बाय एज ऑफ चाइल्ड इन द ईयर प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज. तो वहां पे अडल्ट डोज मेंशन किया है कि ओके कैलकुलेट द डोज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड ऑफ 10 years एज ओके ऑफ सेलोकॉक्सिब व्हेन अडल्ट डोज इज 100 मिलीग्राम. ऐसा क्वेश्चन आएगा. तो अडल्ट डोज कितना है? 100 मिलीग्राम. तो चाइल्ड का एज कितना है? 10. तो एज इन ईयर्स 10 ऊपर 10 नीचे प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज. तो ये सॉल्व करो, आपको यंग्स फार्मूला की वजह से उसका चाइल्ड का डोज मिल जाएगा. ओके, सो याद रखो यंग्स फार्मूला एज इन द ईयर डिवाइडेड बाय एज इन द ईयर प्लस 12 अडल्ट डोज. यहाँ पे 12 से याद रखो. नाउ सेकंड इज अ क्लार्क्स फार्मूला. ठीक है, second is a Clark's formula. It is according to the weight of child for all age. Now Clark's formula can be used for the child having all kind of age according to the weight of child for all age. तो इसमें कोई एज का स्पेसिफिकेशन नहीं. अगर 12 साल के नीचे बच्चा है तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. नाउ क्लार्क्स फॉर्मूला क्या है? क्लार्क्स फॉर्मूला, ठीक है, क्लार्क्स फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ चाइल्ड इन द पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज. सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द weight required, calculate the dose of drug required for a child having 70 pound weight. अगर पाउंड जैसे दिखा तो वैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है. जैसे अगर किसी का वेट दिया है जैसे केजी में नहीं आया, पाउंड में आता है. 1 pound is equal to 2.2 kg. So weight of child in the pounds divided by 150 into adult dose. ठीक है, weight of child in the pounds divided by 150 into adult dose. अगर किसी बच्चे का वेट दिया है पाउंड्स में तो ये फार्मूला यूज करो, क्लास फार्मूला. और थर्ड फार्मूला इज फ्राइड्स फार्मूला. सो इट इज फॉर द चिल्ड्रंस अप टू 1 year. अगर बोला है कि 9 month का एक बच्चा है और कैलकुलेट द डोज रिक्वायर्ड फॉर 9 month चिल्ड्रन इफ अडल्ट डोज इज 100 मिलीग्राम. ऐसा अगर दिया अडल्ट डोज इज 100 मिलीग्राम, 100 नहीं मतलब जो भी होगा वो दिस होगा. सो आपको फ्राइड्स फार्मूला यूज करना है. एज इन द मंथ 9 month डिवाइड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज कितना है? 100. सो वो ये गया 100 ऐसा कैलकुलेशन करके पूरा. सो नाउ नेक्स्ट वन इज डिलिंग्स फार्मूला. तो उसमें डिलिंग्स फार्मूला क्या है? एज इन द ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इनटू अडल्ट डोज. सबसे सिंपल फार्मूला है. देन नेक्स्ट इज अ मोटलर्स इक्वेशन. So it is according to the square meter surface area. उसमें क्या है? मॉडुलस इक्वेशन इज इक्वल टू हाइट इनटू वेट रेज टू 1/2 डिवाइड बाय 60. कि बच्चे का हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, उसके रेज टू 1/2 डिवाइड बाय 60. ये फॉर्मूला है मॉडुलस इक्वेशन. ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन. नेक्स्ट फॉर्मूला इज नथिंग बट द Crowling's formula. Next formula is nothing but the Crowling's formula. Crowling's formula क्या है? Age in the years plus 1 divided by 24 into adult dose. Next है Bastardose formula. Bastardose formula क्या है? Age in the year plus 3 divided by 30 into adult dose. तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं एक तो आपको यंग्स फार्मूला के ऊपर आते हैं, या फिर आपको क्लार्क्स फार्मूला के ऊपर आते हैं, या फिर आपको फ्राइड्स फार्मूला के ऊपर आते हैं. नेक्स्ट फार्मूला इज नथिंग बट बॉडी सरफेस एरिया फार्मूला. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है फॉलोइंग फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज इज द मोस्ट एक्यूरेट. ओके, सो रिमेंबर द मोस्ट एक्यूरेट
formula for calculation of child dose is nothing but the body surface area formula. कौन सा है? Body surface area formula is the most accurate for calculation of children's dose. Now normally कितना होता है body surface area adult का? A body surface area of adult will have 1.73 मीटर स्क्वायर. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. What is the normal body surface area of an adult? It is a 1.73 मीटर स्क्वायर. अब उसका फॉर्मूला क्या है? बॉडी सरफेस एरिया फॉर्मूला इसको बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इनटू अडल्ट डोज. ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अडल्ट इनटू अडल्ट डोज. ठीक है, ये सो दीज आर द फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज. अगर वो वहां पे आपको पूछेंगे कैलकुलेट द डोज रिक्वायर्ड ऑफ codeine phosphate for the children having age 8 years when adult dose is 200 milligram. ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उस टाइम पे 8 मतलब क्या, यहाँ पे यंग्स फॉर्मूला लगाना है. अगर चिल्ड्रन का वेट दिया है, कैलकुलेट द डोज रिक्वायर्ड ऑफ एस्पिरिन of a child weighing 130 pounds when adult dose is 300 milligram. तो ये फॉर्मूला यूज करना है. अगर पाउंड वर्ड आया तो क्लार्क्स फॉर्मूला. अगर 10 साल के नीचे 12 साल के नीचे है एज तो यंग्स फॉर्मूला. ओके, अगर मंथ में दिया है एज, कैलकुलेट द डोज रिक्वायर्ड फॉर अ चाइल्ड हैविंग 6 months old when the adult dose is 500 milligram. तो ये फॉर्मूला यूज करना है. कौन सा? फ्राइड्स फॉर्मूला. एज ऑफ चिल्ड्रन इन द मंथ डिवाइड बाय 150 into adult dose. डिलिंग्स फॉर्मूला. ये तो सिंपल है, एज इन ईयर डिवाइड 20 into adult dose. ये सब के लिए मोटर सिक्वेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्राउलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आए, मास्टर रोड ये भी नहीं पूछेगा. बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड रिक्वायर्ड व्हेन द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इज दिस एंड एडल्ट डोज इज दिस. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. याद रखो, समझ लगा. नाउ लैटिन. ओके, नाउ लैटिन टर्म्स एंड एब्रिविएशंस. लैटिन टर्म्स के ऊपर भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है आपको जीपेट में. सो लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. तो पहले तो डोसेज फॉर्म लैटिन टर्म्स में क्या बोलेंगे. आजकल जो डोसेज फॉर्म टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, सपोजिटरी, दैट इज नोन एज इंग्लिश नेम्स. So before that there was a Latin terms they were used. Nowadays also some doctors they also use Latin terms like BID, okay, stat, BID, TID, quaternion D. So we'll see one by one. So first one is nothing but the dosage form. इसमें रहता है पहले Auristeli. Okay, Auristeli means ear drop. Auristeli को क्या बोलेंगे? Ear drops. ये याद रखो. Auristeli क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. Auristeli means ear drop. ठीक है, Auristeli. देन कैटाप्लाज्मा, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया वही लिस्ट किया है मैंने यहाँ पे. बाकी बहुत सारे बाद में अपन ये भी देख लेंगे, बाकी के भी देख. सो Auristeli means ear drop. कैटाप्लाज्मा means पोल्टिस क्या होता है? पोल्टिस जो होता है, ठीक है. पोल्टिस मतलब क्या है? कोणी बजरंग लेप वगैरे यूज केला असेल ना, तो बजरंग लेप इज नथिंग बट द पोल्टिस. सो पोल्टिस इज नथिंग बट द पाउडर, सो यूज्ड फॉर द swelling. Okay, swelling. So cataplasma is a poultice. Then this cereus is nothing but the urethral bogey. Then colunarium is nothing but the nasal wash. Colutorium is a mouthwash. Hustus is known as a draught मतलब क्या? ड्रॉट मतलब एक ही टाइम पे ये लेना है. जैसे 10 ml एक सिरप रहता है, 150 ml का, 20 ml का सिरप रहता है अल्बेंडाजोल का, एक ही टाइम पे लेना है पूरा का पूरा. So Hustus means draught. Then nebula means nasal spray or nasal solution. Spray solution. Nebula means spray solution. Nebulization इसको बोलते हैं अपन. Nebula means spray solution. Oblatum means cachet or sachet. Then pulvis means powder or dusting powder. ठीक है. Then okay, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Eugentum means ointment. Neristeli means nasal drop. ये हो गए डोसेज फॉर्म. एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन कैसे लेना है, ओके, उसके लैटिन टर्म्स. नाउ आदेंदुस, उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका होता है आदेंदुस.
डूस बोलते हैं उसको, अपन नहीं बोलते कि अडेंडूस, लेकिन अडेंडूस दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो अडेंडूस मतलब टू बी एडेड, टू बी एडेड। तो एप्लीकेंडूस मीन्स टू बी अप्लाइड, ठीक है। एंड डेग्लूटे, ओके, डेग्लूटिडस मीन्स टू बी swallowed। डेग्लूडेशन जो होता है प्रोसेस, उसको swallowing बोलते हैं। सो डेग्लूटिडस मीन्स swallowing, applicandus means to be applied, addendus means to be added, Africanus means to be rubbed into the skin, rubbing action. Then sumendus or zumendus means to be used. Then sugendus means to be sucked in, ठीक है। ये हो गए कुछ टर्म्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस। नाउ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। नाउ सैमेल इन डी मतलब वंस अ डे, सैमेल इन डी। आता ये सब आउटडेटेड टर्म्स है, ये इसको कोई यूज भी नहीं करता है, लेकिन सिलेबस में दिया है, वो क्वेश्चन आता है तो पढ़ना। सैमेल इन डी मीन्स वंस अ डे। देन बिस इन डी, सैमेल इन डी मीन्स वंस अ डे, बिस इन डी मतलब ट्वाइस अ डे, बिस इन डी मतलब ट्वाइस अ डे। टेर इंडी मतलब थ्राइस अ डे। क्वार्टर इंडी मतलब 4 times a day। नाउ आवर, टाइम एंड कोरिलेटेड टाइम, ठीक है। टाइम, टाइम के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, टाइम के लिए कौन सा यूज करते हैं? फर्स्ट इज फर्स्ट वन इज ओमनी होरा मीन्स एवरी आवर, ओमनी होरा मीन्स एवरी आवर। देन अल्टरनिस होरा मीन्स अल्टरनिस होरिस मीन्स एवरी 2 आवर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अल्टरनिस होरिस एवरी 2 आवर्स, ओमनी होरा मीन्स एवरी आवर्स। ये एंटीसिबोस, एंटीसिबोस मतलब सिबोस मतलब मील होता है। सो एंटीसिबोस मतलब बिफोर मील एंड पोस्ट सिबोस मतलब आफ्टर मील। इसके ऊपर अभी रिसेंटली ही क्वेश्चन आया था, पोस्ट सिबोस, सो एंटीसिबोस के ऊपर क्वेश्चन। विल सी दैट टर्म्स अगेन इन द रेफरेंस बुक आल्सो। तो इसमें यहाँ पे एक चार्ट दिया मैंने, टेबल्स, बैलेंस। तो 3 टाइप के बैलेंस होते हैं डिस्पेंसिंग फर्म्स में मेंशन किए। देयर आर 3 काइंड ऑफ बैलेंस, क्लास ए बैलेंस, क्लास बी बैलेंस, क्लास सी बैलेंस। तो क्लास ए बैलेंस के ऊपर आप मिनिमम क्वांटिटी 50 मिलीग्राम वे कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी इसके ऊपर 1 ग्राम वे कर सकते हो। तो क्लास ए बैलेंस जो होता है वो जिसकी क्वांटिटी कम है, बहुत कम है, जैसे 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। सो 1 मिलीग्राम टू अप टू 50 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम, इट इज वेड ऑन क्लास ए बैलेंस। क्लास बी बैलेंस में 10 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक वेट कर सकते हो। मैक्सिमम वेट कितना रहेगा उसमें, 50 ग्राम, ठीक है। मैक्सिमम वेएबल वेट ऑन क्लास बी। देन क्लास सी बैलेंस जो होता है उसके ऊपर आप मिनिमम 1 ग्राम, ओके, वे कर सकते हो, ओके, एंड मैक्सिमम 2 किलोग्राम वे कर सकते हो। तो क्लास ए बैलेंस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम। लैटिन नहीं बोलते उसको, लैटिन अपन बोलते हैं, उसका रियल प्रोनाउंसिएशन है लातिन, लातिन। सम इम्पॉर्टंट लॅटिन टर्म्स एंड एब्रिविएशंस दिसते तुम्हाला, दिसतं आहे का, मोठं करू। ऑरेस्टरी मतलब क्या, ऑरेस्टरी मतलब ईयर ड्रॉप्स, ओके। ऑरेस्टरी कैप्सुला मतलब कैप्सूल, ओके। कैप्सुला अमाइसिला, अमाइलेसिया, कैप्सुला अमाइलेसिया मीन्स कैचेट। कैटाप्लाज्मा मतलब क्या, पोल्टिस, ओके। चार्ट्रा मतलब पाउडर, कोलुटोरियम मतलब माउथ वॉश, ओके। कोलिरियम मतलब आई लोशन, ठीक है। कोलेरियम मतलब आई लोशन। क्रीमर मतलब क्रीम, ओके। एम्प्लास्टम मतलब प्लास्टर, एम्प्लास्टम मतलब प्लास्टर। तो इसमें प्लास दिख रहा है, PLAST, ये कैन कोरिलेट। इमल्सिव मतलब इमल्शन, ओके। गार्गरिज्मा मीन्स गार्गल, जो ना कुल्ला करते हैं अपन, चूड़ भरतो अपन, ठीक है। गार्गरिज्म मीन्स गार्गल, ओके। जेलाटिना मीन्स जेली। गुट्टेई मतलब ड्रॉप्स। हस्टस मीन्स ड्रॉट। देन इनहले मतलब इंजेक्शन, इनहले मतलब इनहलेटिव मतलब इनहलेशन। इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन। इनसप्लेटिव मतलब इनसप्लेशन। लिंक्टस मतलब लिंक्टस। लिनिमेंटम मतलब लिनिमेंट। लिक्वर मतलब लिक्विड और सोल्यूशन, लिकर मतलब सोल्यूशन। लोशियो मतलब लोशन। मिस्तूरा मतलब मिक्सचर। नेरिस्टेरी मतलब नजल, नोज और नजल ड्रॉप। नेबुला मतलब स्प्रे। ऑकुलेटियम मतलब आई ऑइंटमेंट। ऑकुले ऑकुलेंटम मीन्स आई ऑइंटमेंट।
पेस्ट मतलब पेस्ट, पेस्टा मतलब पेस्ट, पिलुला, पिलुला मतलब पिल्स, ठीक है, पिलुला मीन्स पिल्स, पुलविस मीन्स पाउडर, सपोजिटोरियम मतलब सपोजिटरी, टेबिला मतलब टैबलेट, देन अंजेंटम और यूजेंटम मतलब ऑइंटमेंट, वेपर मतलब इनहेलेशन, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन, एडेंडुस, एडेंडुस मतलब टू बी एडेड, एप्लीकेंडुस मतलब टू बी अप्लाइड, ओके, कैपिएंडुस मतलब टू बी टेकन, डेंडुस मतलब टू बी गिवन, डेग्लूटेंडिस मतलब टू बी swallowed, इफ्रिकांडुस टू बी रब्ड, इनहेलेटुर मतलब इनहेलेशन, इंस्टिलेंडुस मतलब टू बी इंस्टिल्ड, टू बी ड्रॉप्ड। जैसे आई ड्रॉप में क्या होता है, आई ड्रॉप ड्रॉप वन बाय वन ड्रॉप डालते हो ना, सो दैट इज इंस्टिलेंडुस, ओके। मिसेंडुस मतलब टू बी मिक्स्ड, सिग्ना, सिग्ना मतलब लेबल, ओके, सिग्ना मतलब लेबल, सुजेंडुस मतलब टू बी सक्ड एंड सुमेंडुस और जुमेंडुस और सुमेंडुस मतलब टू बी टेकन। नाउ सेमेलिंडी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेमेलिंडी मतलब वंस अ डे, दिस इंडी मतलब ट्वाइस अ डे, सेमेलिंडी मतलब सेम इंडी, बीआईडी मतलब ट्वाइस अ डे, टी टर इंडी दैट इज टीआईडी मींस तो थ्री टाइम्स, क्वार्टर इंडी फोर टाइम्स। अभी ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब लेना है, सुबह शाम दोपहर में। प्राइमो माने, प्राइमो माने मीन्स और प्राइमो मीन्स अर्ली मॉर्निंग, ओमनी माने मीन्स एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, प्राइमो माने मीन्स अर्ली मॉर्निंग। जेंटाकुलम, जेंटाकुलम मतलब ब्रेकफास्ट, देखो कुछ भी बोलते हो, जेंटाकुलम, जेंटाकुलम मतलब क्या, ब्रेकफास्ट। ट्रेंडियम मतलब लंच, सॉरी प्राइमियम, प्राइंडियम मतलब डिनर, होता है ना, पोस्ट पेरेंडियल शुगर लेवल, प्राइंडियम मतलब डिनर, नॉक्टे मतलब नाइट, ओमनी नॉक्टे मतलब एवरी नाइट, ओमनी होरा मतलब एवरी आवर, एंटी सिबोज मतलब बिफोर मील, पोस्ट सिबोज मतलब आफ्टर मील, ठीक है, इंटर सिबोज मतलब बिटवीन द मील, ठीक है। डेक्स्टर मतलब पार्ट, डेक्स्टर मतलब राइट साइड, लिवियस मतलब लेफ्ट साइड, ब्रांकियो मतलब दाम, ब्रांचियो, ब्रांचियो मतलब आर्म, कैपिटी मतलब हेड, क्यूरिरी मतलब लेग, स्टर्नो मतलब चेस्ट, औरी मतलब इयर्स, बाकीचं नाही इम्पॉर्टंट, नेसो मतलब नजल, कळून न देते, ऑक्युलस मतलब आईज, हाँ, मिड टे, मिड टे मीन्स सेंट, मिड डे मीन्स क्या, सेंट। तो यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन में कभी कभी डॉक्टर लोग ये लिख लेते, मिड डे मीन्स सेंट, ये भी लिखते हैं। Fialala, क्या, Fiala Prius agitator, Fialala Prius agitator, that means shake bottle before use, shake well before use रहता ना, तो Fialala Prius agitator, then midday tails, saint such, डोलेरे अर्जेंटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, डोलेरे अर्जेंटी, डोलेरे अर्जेंटी मतलब व्हेन पेन इज सीवियर, अगर आपको ज्यादा पेन है तो उसमें बोलते हैं डोलेरे अर्जेंटी। मोडोडिक्टो, मोडोडिक्टो मतलब एज डायरेक्टेड, मोडोडिक्टो मतलब एज डायरेक्ट, कभी कभी ये डॉक्टर लोग ये लिख देते, ये टर्म्स लिख देते, ऐसा लिख देते, प्रेस्क्रिप्शन लिखा उसमें कि पहले लेते स्टैट पैरास्टामोल 650 मिलेगा, स्टैट पैरास्टामोल 650 मिलेगा, स्टैट मतलब इसका क्योंकि ये मुझे एक्सपीरियंस है, मैं डोलो 650 ऐसा टैबलेट लिख दिया है, उसका मतलब ये था कि इमीडिएटली उसको, जो डोलो टैबलेट है उसको इमीडिएटली लेना है, तो स्टैट मतलब क्या, इमीडिएटली, स्टैटिंग, उसके लेटर में स्टैटिंग, स्टैटिंग मतलब इमीडिएटली, एट वंस, ठीक है, इमीडिएटली एट वंस। टू सी अर्जेंटी, टू सी अर्जेंटी मीन्स वेन कप इज अ ट्रबलसम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है फार्मासिस्ट एग्जाम में, बहुत सारे इससे, ये लैटिन टर्म्स फार्मासिस्ट एग्जाम में तो फेवरेट होते हैं। टू सी अर्जेंटी मतलब, टसी अर्जेंटी मतलब, टस मतलब, टसिस मतलब क्या, टसिस मतलब कफ, सो व्हेन कफ इज अ ट्रबलसम टू सी अर्जेंटी, स्टैट मतलब इमीडिएटली, मोडो डिक्टो मतलब as directed, modo dicto as directed. So this was today's session, we'll see the remaining point, I will make the notes and we'll take remaining